Good morning, students. I am Simfta from JPPS. Student, in previous video, we discuss about midpoint theorem. What is midpoint theorem? First, we discuss about midpoint theorem. Midpoint theorem is a line segment joining the midpoint of opposite side of triangle is parallel to third side and bisect the and half of third side. Student, suppose ABC be any triangle, A B C be any triangle, D is midpoint of AB, E is midpoint of AC, D is midpoint of AB, E is midpoint of AC. If we join AC, then AC parallel to BC, AC parallel to BC and AC half of BC. स्टूडेंट जो आपके पास DE है, DE क्या होगी, BC के पैरेलल होगी एंड DE क्या होगी, BC के हाफ होगी. So student, midpoint theorem is a line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side and half of third side. It means DE parallel to BC and DE half of BC. Student, today we start converse of midpoint theorem. Student, today we start converse of midpoint theorem. Now student, we start converse of midpoint theorem. Statement of converse of midpoint theorem is the line draw through the midpoint of one side. The line draw through the midpoint of one sides of a triangle parallel to another side bisect the third side. Student, suppose ABC be any triangle, ABC be any triangle, D is midpoint of AB, D is midpoint of AB, a line pass through D parallel to BC, a line pass through D parallel to BC. Suppose DE is a line which is parallel to BC. DE is a line which is parallel to BC. We saw that E is midpoint of AC. Student, suppose ABC be any triangle, D is midpoint of AB, D is midpoint of AB, a line DE pass through D, a line DE pass through D parallel to BC, then E is midpoint of AC. स्टूडेंट, आपको क्या प्रूफ करना है, E is midpoint of AC. आपके पास ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में D क्या है, D is midpoint of AB गिवन है एंड DE पैरेलल है BC के, DE is parallel to BC and we saw that E is midpoint of AC. आपको क्या शो करना है, E जो है ना वो क्या है, थर्ड साइड A से क्या है, मिडपॉइंट है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट गिवन, what is given, a triangle ABC. What is given, a triangle ABC in which D is midpoint of AB, D is midpoint of AB and DE parallel to BC. Student, given
a triangle ABC in which D is midpoint of AB and DE parallel to BC. What we prove? Now to prove, स्टूडेंट आपको क्या प्रूव करना है? E is midpoint of AC. What we prove? E is midpoint of AC. Now proof. Student, suppose E is not midpoint of AC. स्टूडेंट आपको क्या प्रूफ करना है? E is midpoint of AC. Suppose E is not midpoint of AC and midpoint of AC is F. What we suppose? Midpoint of AC is F. Let midpoint of AC is F. स्टूडेंट आपको क्या सपोज करना है? E is midpoint of AC. We suppose midpoint of AC is F. आपने क्या सपोज किया? Midpoint of AC is F. Now join DF. We join DF. Student, see here in triangle ABC. In triangle ABC, D is midpoint of AB. F is midpoint of AC. Student, आपने क्या सपोज किया हुआ है? F is midpoint of AC. D is midpoint of AB, F is midpoint of AC. So by midpoint theorem, DF parallel to BC. So student, D is midpoint of AC and D is midpoint of AB and F is midpoint of AC. So by midpoint theorem, so student, by midpoint theorem, DF parallel to BC. DF parallel to BC. Student, by midpoint theorem, DF parallel to BC. But student, DE parallel to BC. But student, we given DE parallel to BC. But DE parallel to BC. Student, see here, DF parallel to BC. DE पैरेलल टू BC. स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1, DF किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है. DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग DF पैरेलल टू BC, फ्रॉम इक्वेशन 2 DE पैरेलल टू BC. सो DF पैरेलल टू DE. स्टूडेंट लाइन DF क्या है? DE के पैरेलल है. लाइन DF पैरेलल टू DE. DF पैरेलल टू DE. इट मीन्स बोथ लाइन आर पैरेलल. लाइन DF एंड लाइन DE both are parallel lines. But student, we know that parallel line never intersect. Student, लाइन DF क्या है? DE के पैरेलल है. But we know that पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट. जो आपके पास पैरेलल लाइन होती है ना, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. बट DE और DF क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. इट मीन्स DE एंड DF आर नॉट पैरेलल. स्टूडेंट, DE एंड DF क्या कर रही है? पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रही है. सो दीज लाइन आर नॉट पैरेलल लाइन. बट आपके पास क्या प्रूफ कर रहे हो? आप प्रूफ कर रहे हो DF पैरेलल टू DE. स्टूडेंट, DE एंड DF कैसी लाइन है? नॉन पैरेलल है. बट आपने क्या प्रूफ किया? DF पैरेलल टू DE, विच इज इम्पॉसिबल. बिकॉज DF एंड DE intersect at a point. So DF not parallel DE, which is impossible.
स्टूडेंट ये क्या है, इम्पॉसिबल है, बिकॉज डी ई एंड डी एफ क्या कर रही है, पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, सो डी ई क्या होगी, डी एफ के पैरेलल नहीं होगी। स्टूडेंट आपने क्या सपोज किया, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आपने क्या सपोज किया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज एफ, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके पास एक रिजल्ट रॉन्ग फाइंड कर रहे हो। स्टूडेंट आपने क्या सपोज किया, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी आपने सपोज किया था, और आपने क्या किया, एक रिजल्ट फाइंड किया विच इज रॉन्ग। आपने जो रिजल्ट फाइंड किया वो क्या है, रॉन्ग है, लाइन एक्चुअल में पैरेलल नहीं है, इट मीन्स आवर एजप्शन इज रॉन्ग। स्टूडेंट आपकी जो एजप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। दिस इम्प्लाई एफ इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इम्प्लाई E is midpoint of AC. E is midpoint of AC. This imply DE bisect AC. DE bisect AC. Student, converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem में आपको क्या प्रूफ करना है, DE is midpoint of AC. आपको क्या प्रूफ करना है, E is midpoint of AC. आपने क्या सपोज किया, सपोज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज एफ, आपने क्या सपोज किया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज एफ, व्हेन एफ इज मिड पॉइंट, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ क्या हो गया, बी सी के पैरेलल हो गया, बट डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है, डी बी सी के पैरेलल है, ये आपको गिवन है, डी एफ भी बी सी के पैरेलल है, डी ई भी क्या है, बी सी के पैरेलल है, सो डी एफ पैरेलल डी, डी एफ पैरेलल डी, डी एफ एंड डी क्या पे, अभी हमने क्या प्रूफ किया है, डी एफ एंड डी क्या है, पैरेलल है, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, सो दीज आर नॉट पैरेलल, सो विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज डी एफ एंड डी ई आर नॉट पैरेलल लाइन। स्टूडेंट आपने एफ को सपोज किया तो मिड पॉइंट है, और आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप एक इम्पॉसिबल रिजल्ट फाइंड कर रहे हो, सो एफ इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपने f को मिड पॉइंट कंसिडर किया तो आपने क्या फाइंड किया, एक इम्पॉसिबल रिजल्ट फाइंड किया है, सो f इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC। f क्या है, मिड पॉइंट, f इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC, f AC का मिड पॉइंट नहीं है, सो मिड पॉइंट कौन होगा, सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज E, दिस इम्प्लाई E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, व्हेन E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, दिस इम्प्लाई DE बाइसेक्ट AC। तो स्टूडेंट D क्या कर रही है, AC को बाइसेक्ट कर रही है। Now student, we start exercise 8.2 question 1. Question 1 is ABCD is a quadrilateral. ABCD is quadrilateral. P, Q, R and S are the midpoint of AB. P is midpoint of AB. Q is midpoint of BC. R is midpoint of CD. And S is midpoint of AD. P, Q, R and S are midpoint of AB, BC, CD and AD. AC is diagonal. AC is diagonal. AC is diagonal of quadrilateral. First part, show that SR parallel AC. Student, what is the proof? SR parallel to AC and SR half of AC. Student, see here we have a triangle ADC. Student आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADC. S is midpoint of AD. आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADC. S is midpoint of AD. S क्या है, AD का midpoint है. R is midpoint of DC. R क्या है, midpoint of DC है. So student, by midpoint theorem SR parallel to AC. Student, by midpoint theorem SR parallel to AC and SR half of AC. Student, आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADC. S is midpoint of AC in triangle. S क्या है आपके पास, midpoint of AD है. R is midpoint of DC. R क्या है, DC का midpoint है. So by midpoint theorem SR parallel to AC. So student, in triangle
ए डी सी, S is midpoint of AD, R is midpoint of DC. So by midpoint theorem, SR parallel to AC and SR half of AC. So student, by midpoint theorem, SR parallel to AC and SR half of AC. So student, we prove first part SR parallel to AC and SR half of AC. Now second part is PQ equal SR. Student, आपको क्या प्रूव करना है? इन सेकंड पार्ट वी प्रूव दैट PQ इक्वल SR. आपको शो करना है PQ किसके इक्वल है? SR के इक्वल है. स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन 1. स्टूडेंट, सी हेयर वी हैव ए ट्रायंगल ABC. स्टूडेंट, आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC. P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. P क्या है? AB का मिड पॉइंट है. Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC. Q क्या है? BC का मिड पॉइंट है. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ ऑफ AC. स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. P क्या है? आपके पास AB का मिड पॉइंट है. Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC. Q क्या है? BC का मिड पॉइंट है. So by midpoint theorem, PQ parallel to AC and PQ half of AC. So student, P is midpoint of AB. B is midpoint of AB. Q is midpoint of BC. So by midpoint theorem, PQ parallel AC and PQ half of AC. Students, see here, SR half of AC. SR क्या है? AC का हाफ है. PQ हाफ ऑफ AC. SR हाफ ऑफ AC. SR क्या है? AC का हाफ है. एंड PQ भी क्या है? AC का हाफ है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, PQ इक्वल SR. सेम, SR पैरेलल AC एंड PQ पैरेलल AC. स्टूडेंट, SR क्या है? AC के पैरेलल है. PQ भी क्या है? AC के पैरेलल है. सो SR पैरेलल टू PQ. सो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, SR पैरेलल PQ एंड SR इक्वल PQ. स्टूडेंट, SR क्या है? PQ के पैरेलल है एंड SR क्या है? PQ के इक्वल है. सो सेकंड पार्ट ऑल्सो प्रूव. सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? SR इक्वल PQ. सो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूव SR इक्वल PQ. नाउ थर्ड पार्ट, प्रूव दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम. स्टूडेंट, इन थर्ड पार्ट वी प्रूव दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम. स्टूडेंट, सी हेयर, इन सेकेंड पार्ट वी प्रूव दैट PQ पैरेलल RS. स्टूडेंट, आपने सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव किया है? PQ पैरेलल RS एंड PQ इक्वल RS. PQ क्या है? RS के पैरेलल है और PQ क्या है? RS के इक्वल है. इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है. PQRS में PQ क्या है? RS के पैरेलल है एंड PQ क्या है? RS के इक्वल है.
So PQRS is a parallelogram. So student, in quadrilateral PQRS, PQ parallel RS and PQ इक्वल RS. PQ क्या है? RS के पैरेलल है एंड PQ क्या है? RS के इक्वल है. सो क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram. Student, quadrilateral PQRS is a parallelogram. So student, third part also be proved. So in third part we prove that PQRS is a parallelogram. Now student, question number 2. Question 2 is ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA. ABCD is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoint of side AB. P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of AD. स्टूडेंट, आपके पास P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of DC and S is midpoint of AD. So that quadrilateral PQRS, what we saw that PQRS is a parallel, is a rectangle. Student, what we saw, quadrilateral PQRS is a rectangle. आपको कैसे करना है? PQRS क्या है? रेक्टेंगल फॉर्म करेगा. स्टूडेंट, सी हियर, इफ वी जॉइन AC, स्टूडेंट वी जॉइन AC, आपने क्या किया? AC को ज्वाइन किया. स्टूडेंट, सी हियर, इन ट्रायंगल ADC, आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADC. S इज मिड पॉइंट ऑफ AD. S क्या है? AD का मिड पॉइंट है. R इज मिड पॉइंट ऑफ DC. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR parallel AC and SR half of AC. Student, in triangle ADC by midpoint theorem SR parallel to AC. SR क्या होगा? AC के पैरेलल होगा. सेम इन ट्रायंगल ABC, P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC. So PQ parallel AC and PQ half of AC. So student, in triangle ADC, in triangle ADC, SR parallel AC and SR half of AC. SR क्या है? AC के पैरेलल है एंड SR क्या है? AC का हाफ है बाय मिड पॉइंट थ्योरम. Same student, in triangle ABC, PQ parallel to AC and PQ half of AC. So by midpoint theorem, student, from equation 1, SR parallel to AC, PQ parallel to AC. So SR parallel to PQ, SR parallel to PQ and SR half of AC, PQ half of AC and SR equal PQ. स्टूडेंट, SR क्या है? PQ के पैरेलल है एंड SR क्या है? PQ के इक्वल है. सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम. सो स्टूडेंट, PQRS इज ए पैरेललोग्राम. स्टूडेंट, आपने क्या प्रूव किया? क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या फॉर्म कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल PQRS एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है. बट आपको क्या प्रूफ करना है? PQRS इज ए रेक्टेंगल.
स्टूडेंट आपको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस क्या फॉर्म करेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, बट आपने अभी क्या प्रूफ किया है, पी क्यू आर एस क्या फॉर्म कर रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट सी हेयर इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। स्टूडेंट आपके पास जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पी क्यू आर एस क्या करना है, आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अभी आपने क्या प्रूफ किया है, पी क्यू आर एस से पैरेललोग्राम। इट मीन्स इन पी क्यू आर एस पी क्यू इक्वल आर एस, पी क्यू क्या है, आर एस के इक्वल है, एंड पी एस इक्वल आर क्यू, पी एस क्या है, आर क्यू के इक्वल है। अभी आपने पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ किया है, एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, बट आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इट मीन्स आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी इक्वल शो करने हैं। स्टूडेंट आपको पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, बट आपने अभी क्या प्रूफ किया है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए या तो आपको ईच एंगल 90 शो करना होगा, या आपको ईच डायगोनल्स दैट इज बोथ डायगोनल इक्वल शो करने हैं। इट मीन्स आपको क्या शो करना है, क्यू एस इक्वल पी आर, आपको क्या शो करना है, क्यू एस इक्वल पी आर। स्टूडेंट सी हेयर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, ए बी सी डी रोम्बस है। सो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है। इफ ए बी पैरेलल डी सी, अगर ए बी डी सी के पैरेलल है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी आर सेम। स्टूडेंट ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी ऑलवेज क्या हो गए, सेम हो गए। इट मीन्स ये जो आपके पास पी आर है, पी आर किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, एंड पी आर किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। स्टूडेंट ए बी सी डी आपके पास क्या फॉर्म कर रहा है, ए बी सी डी आपके पास एक रोम्बस फॉर्म कर रहा है ना। इन रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है। इफ ए बी पैरेलल डी सी, देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी ऑलवेज सेम। ए बी डी सी के पैरेलल है ना, तो इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी। इट मीन्स बी सी इक्वल पी आर इक्वल ए डी। स्टूडेंट पी आर इक्वल बी सी, पी आर क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा, बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी। सेम स्टूडेंट ए डी पैरेलल बी सी, ए डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। व्हेन ए डी पैरेलल बी सी, स्टूडेंट सी हेयर, नाउ स्टूडेंट ए डी पैरेलल बी सी, ए डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। व्हेन दीज साइड्स आर पैरेलल, देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ साइड आर इक्वल। ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। जब साइड्स पैरेलल है तो डिस्टेंस इनके बिटवीन कैसे होगी, ऑलवेज सेम होगी। इट मीन्स पी एस सॉरी क्यू एस इक्वल ए बी, क्यू एस किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। क्यू एस इक्वल ए बी बिकॉज ए डी पैरेलल बी सी। स्टूडेंट ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है ना, सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी आर ऑलवेज सेम। आपके पास ए बी एंड डी सी के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या है, बी सी है। सेम यहाँ पे डिस्टेंस क्या आपके पास, पी आर है, सो बी सी किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। सेम ए डी एंड बी सी भी क्या है, पैरेलल है, ए डी एंड बी सी क्या है, पैरेलल है। व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, देन डिस्टेंस बिटवीन ऑलवेज सेम। सो आपके इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, एस क्यू है, और यहाँ पर क्या है, ए बी है, सो एस क्यू इक्वल ए बी। बट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस है, सो ए बी इक्वल बी सी। स्टूडेंट पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस है, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ए बी इक्वल बी सी। अब स्टूडेंट सी हेयर
पी आर इक्वल टू बी सी, क्यू एस इक्वल टू ए बी। पी आर किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। क्यू एस किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। बट बी सी इक्वल ए बी, बी सी क्या है? ए बी के इक्वल है। सो पी आर इक्वल क्यू एस। सो स्टूडेंट दिस इंप्लाई पी आर इक्वल क्यू एस। पी आर क्या है? क्यू एस के इक्वल है। व्हेन पी आर इक्वल क्यू एस, पी आर इज ए डायगोनल, क्यू एस इज डायगोनल। पी आर क्या है? पी क्यू आर एस का एक डायगोनल है। क्यू एस भी क्या है? डायगोनल है। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बोथ डायगोनल आर इक्वल। स्टूडेंट पैरेललोग्राम है ना, पी क्यू आर एस में क्या हो रहा है? डायगोनल इक्वल है। पी आर किसके इक्वल है? क्यू एस के इक्वल है। सो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस फॉर्म ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस फॉर्म ए रेक्टेंगल। स्टूडेंट सो आपने अभी क्या प्रूफ किया है? पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस फॉर्म ए रेक्टेंगल। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 is ABCD is a rectangle. P, Q, R and S are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. ABCD is a rectangle. P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD and S is midpoint of AD. पी क्यू आर एस के आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। पी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। क्यू बी सी का है, आर सी डी का एंड एस ए बी का है। वी सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस फॉर्म ए लॉम्बस। स्टूडेंट आपको क्या फॉर्म करना है? पी क्यू आर एस क्या फॉर्म कर रहा है? पी क्यू आर एस एक लॉम्बस फॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट सी हेयर इफ वी ज्वाइन ए सी, आपने क्या किया? ए सी ज्वाइन किया। सेम स्टूडेंट इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी in triangle A B C, PQ parallel to AC and PQ half of AC. स्टूडेंट PQ क्या है? AC के पैरेलल है एंड PQ क्या है? हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। Same student, in triangle ADC, S is midpoint of AD, R is midpoint of DC, S is midpoint of AD, R is midpoint of DC. So SR parallel to AC and SR half of AC. In triangle ADC, SR parallel AC and SR half of AC by midpoint theorem. Student PQ half of AC, SR half of AC. So PQ equal SR equal half of AC. It means PQ equal SR and half of AC. PQ क्या है? SR के इक्वल है एंड PQ क्या है? SR का हाफ है। सेम स्टूडेंट इफ वी ज्वाइन DB, आपने क्या किया? डायगोनल DB को ज्वाइन किया। वी हैव टू ट्रायंगल फर्स्ट ADAB। स्टूडेंट इफ वी ज्वाइन डायगोनल DB वी हैव ट्रायंगल DAB। आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रायंगल DAB फॉर्म हो रहा है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है? AB का मिड पॉइंट है। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, S क्या है? AD का मिड पॉइंट है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PS
parallel to dB and PS half of dB. So student, in triangle DAC, PS parallel to dB and PS half of dB, PS parallel to dB and PS half of dB by midpoint theorem. Same student, in triangle DCB, R is midpoint of CD, Q is midpoint of BC. आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DCB, R is midpoint of DC. R क्या है? DC का midpoint है. Q is midpoint of BC. So RQ parallel to DB and RQ half of DB. In triangle DCB, RQ parallel to DB and RQ half of DB. RQ क्या है? DB का हाफ है. Consider equation 4. Student, from equation 3 and 4 from equation 3 and 4th, third and fourth, PS equal RQ equal 1/2 BC. Student, PS equal RQ equal 1/2 BC. It means PS क्या है? RQ के इक्वल है और 1/2 student here PS half of dB, PS half of dB. So PS equal RQ equal 1/2 dB. PS equal RQ equal 1/2 dB. Student, PS किसके इक्वल है? RQ के इक्वल है एंड किसके इक्वल है? हाफ 1/2 dB. Student, we have given ABCD is a rectangle. Student, आपको क्या गिवन है? ABCD is a rectangle. In rectangle diagonals are equal. आपको ABCD rectangle गिवन है. In rectangle diagonals are equal. So AC equal DB. Student, AC क्या होगा? DB के इक्वल होगा. ABCD is a rectangle. ABCD क्या गिवन है आपको? रेक्टेंगल गिवन है. सो AC इक्वल DB. AC क्या है? DB के इक्वल है. स्टूडेंट, सी हेयर PQ किसके इक्वल है? SR के इक्वल हाफ AC. PQ SR के इक्वल है और AC का हाफ है. सेम PS किसके इक्वल है? RQ के इक्वल है और क्या है वो? DB का हाफ है. बट AC एंड DB क्या है? इक्वल है ना. AC एंड DB क्या है? इक्वल है. When AC equal DB, then diagonals, then half of both are equal. AC and DB क्या है? इक्वल है. तो इनके जो हाफ है 1/2 AC and 1/2 DB वो भी क्या हो गए? इक्वल हो गए. इट मीन्स 1/2 AC इक्वल 1/2 DB. कंसिडर इक्वेशन A, कंसिडर इक्वेशन B, कंसिडर इक्वेशन C. स्टूडेंट, आपने क्या सपोज किया? कंसिडर इक्वेशन A, consider equation B and consider equation C. So from equation A, B and C, from equation A, B and C, PQ equal SR equal PS equal RQ. स्टूडेंट, आपने इक्वेशन ए में क्या प्रूफ किया है? PQ इक्वल SR हाफ ऑफ AC. इक्वेशन बी में आपने क्या प्रूफ किया है? PS इक्वल RQ इक्वल हाफ DB एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सी AC इक्वल DB. सो फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C, PQ इक्वल SR इक्वल PS इक्वल RQ, PQ इक्वल RS
equal RQ equal AC. It means all four sides of this quadrilateral are equal. स्टूडेंट आपने क्या प्रूफ किया है? All four sides of quadrilateral PQRS are equal. So this imply PQRS is rhombus. Student, we saw that PQRS is a rhombus. Student, आपने क्या प्रूफ किया है? In all sides of PQRS are equal, so PQRS is a rhombus.